अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ دو الگ الگ مقامات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے ایک مختصر روایت آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنایا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسجد کی شرعی حیثیت، مسجد کے حقوق، مسجد کے آداب، مسجد کے فضائل اور اس کے احکام کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے نمبر میں یہ سمجھنا چاہیے مسجد کسے کہتے ہیں. لغتاً سجد یسجد، سجدہ کرنے کی جگہ. لغتاً ترجمہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. سجدہ عربی میں کہا جاتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض. عربی میں سجدے کی تعریف یہ بیان کی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، انسان کا اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دینا، زمین پر رکھ دینا. عربی میں یہ ترجمہ سجدے کا ہے. وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر اپنی پیشانی کو رکھنا. مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز میں سب سے زیادہ قرب نمازی کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے. یہ تو لغوی اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوا مسجد کا. شریعت کی بول چال میں اللہ کا مقدس گھر، اللہ کی تجلی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کے اترنے کی جگہ، جس میں 5 ٹائم مسلمان اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز، ذکر، تلاوت کرتے ہوں، اس کو شریعت کی بول چال کے اندر مسجد کہا جاتا ہے. جو عمارت یا جو زمین مسلمان نے تعمیر کر کے یا زمین کا جو حصہ اپنی ملکیت سے نکال کر لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مسلمان قوم کی نماز کی ادائیگی کے لیے جو قطعہ اور زمین کا ٹکڑا اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کے لیے وقف کر دیا اور عام مسلمانوں کو اس میں نماز کی اجازت عامہ ہو گئی اور ایک وقت کی نماز اس میں ادا کر لی گئی، تو یہ ساتوں زمین کے نیچے
और 7 आसमान के ऊपर तक ये मस्जिद है। अब ये अल्लाह का घर हो गया। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। सारी मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के अलावा को इन मसाजिद के अंदर पुकारना जायज नहीं। ये तो लुगतन और इस्तिलाहन शरीयत की बोलचाल में मस्जिद किसे कहते हैं इसका तर्जमा हो गया। हजरत सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मस्जिद कहा जाता है अल्लाह के नूर के नाजिल होने की जगह, अल्लाह की तजल्ली के उतरने की जगह, अल्लाह की रहमत के उतरने की जगह को मस्जिद कहते हैं। और अल्लाह ताला का ये ज़ाब्ता है, अल्लाह के नूर की तजल्ली लोहे महफूज में है और लोहे महफूज से अल्लाह के नूर की तजल्ली दुनिया में काबतुल्लाह की छत पर उतरती है। और काबतुल्लाह अल्लाह के तजल्ली का सरजमीन में मेन पावर हाउस है। काबा पूरा ये अल्लाह की तजल्ली का मेन पावर हाउस है। और अल्लाह की तजल्ली लोहे महफूज से सीधी बैतुल मामूर से काबतुल्लाह में नाजिल हुई और काबतुल्लाह ने उसको महफूज किया। फिर यहां से पूरी दुनिया की वो मसाजिद जिसमें मुसलमान 5 वक्त नमाज के लिए आते हैं, जिसको शरई मस्जिद कहा जाता है, बैतुल्लाह से अल्लाह के नूर की तजल्ली इन मसाजिद में सप्लाई होती है, इन मसाजिद में तकसीम होती है। गोया के कायनात के चप्पे चप्पे कोने कोने में 2 मुक्तदी की नमाज की मस्जिद हो या बहुत बड़ी मस्जिद लाखों इंसानों की। दुनिया में ऐसी भी मस्जिदें हैं जिसमें सिर्फ 2 ही आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, एक इमाम और एक मुक्तदी। यह मस्जिद भोपाल में है, जो इस्लामी स्टेट था और नवाब ने तोप फोड़ने वाले और सायरन बजाने वाले के लिए एक मस्जिद बनाई थी। और इसको आम तौर पर हिस्ट्री में 2 सीढ़ी वाली मस्जिद बोलते हैं, वो हम देख कर आए। इसी भोपाल में एक ताजुल मसाजिद है, तो बहुत बड़ी मस्जिद है, जहां आम तौर पर आलमी इज्तिमा पहले हुआ करता था। बहुत बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान में। तो इस शहर की खुसूसियत यह है कि दुनिया की बहुत बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान लेवल की भी वहां है और सिर्फ 2 आदमी नमाज पढ़ते हैं, एक इमाम और एक मुक्तदी। इससे अंदाजा होता है कि नवाब हजरात की इल्म दोस्ती, इनकी दुरुस्तगी राय, और जब ये साले और नेक थे तो उनमें इबादत का कितना एहतिमाम और अल्लाह का तकवा और खौफ कितना कि तो फोड़ने वाला, एक रोजा इफ्तार कराने का साइलन बजाने वाला, उसकी भी जमात की नमाज छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए उसके लिए मुस्तकिल मस्जिद बना दी और आज वो मस्जिद मौजूद है और उसमें बराबर नमाज हो रही है, एक इमाम और एक मुक्तदी। ये मस्जिद 100% आबाद है, जिसके नमाजियों की तादाद 2 ही है, 3 नहीं हो सकती। खैर, इस पर मुझे याद आ गया कि अल्लाह की रहमत के नाजिल होने की जगह, अल्लाह की तजल्ली का मरकज बैतुल्लाह से ये नूर तकसीम होता है, ये तजल्ली तकसीम होती है और रहमत तकसीम होती है। दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने में जहां मस्जिदें बनी हुई हैं, वहां अल्लाह का नूर तकसीम किया जाता है इन मसाजिद में बैतुल्लाह से। फिर जो हजरात अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में 5 वक्ता नमाज के लिए तशरीफ लाते हैं, तो वो अल्लाह के नूर का हिस्सा लेकर के घर जाते हैं। और जो मुसलमान 5 वक्ता नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते, तो उनके घर में नूर का, रहमत का और बरकत का कोई हिस्सा तकसीम नहीं होता। खैर, अल्लाह ताला ने जब जमीन बनाना चाहा, उससे पहले जमीन पानी का परपोटा थी। पूरी कायनात में जब अल्लाह ने जमीन बनाना चाहा, तो पहले जमीन नहीं थी, पानी ही पानी था। जब अल्लाह जमीन बनाना चाहते थे, कुरान में तफसीर में लिखा है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फीही
आयातुम बय्यिनातुन मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इसमें इसकी मुकम्मल तारीख लिखी है। जब अल्लाह ने जमीन बनाना चाहा तो बैतुल्लाह जन्नत से सुर्ख याकूत की ईंट उतारी, जन्नत से सुर्ख याकूत की ईंट उतारी और उस जगह रखी जहां बैतुल्लाह है। इसीलिए पूरी कायनात का अव्वल आलम, पूरी कायनात का आखिर आलम और पूरी कायनात का वस्ते आलम अल्लाह ने मक्का को बनाया। इसके चारों तरफ शिमाल, जुनूब, पूरब, पश्चिम दुनिया फैली हुई है और पूरी कायनात की जमीन का हार्द, पूरी कायनात की जमीन का दिल, पूरी कायनात की जमीन की रूह वो जगह है जहां बैतुल्लाह की बुनियाद डाली गई है। इससे पहले कायनात में जमीन नहीं थी, तो पूरी कायनात की जमीन का हार्ड और दिल जहां वाक़े है वो मक्का मुकर्रमा है और जिस जगह में वाक़े है वो बैतुल्लाह है। तो बैतुल्लाह से जन्नत से सोने की ईंट उतारी गई और बैतुल्लाह की जगह रखी गई। जब वहां कुछ ऊंचाई हुई तो खसो खासा जमा होना शुरू हुआ। जहां टीला होता है पानी में तो कचरा जमा होता है। इस तरह कायनात की जमीन को खुदावंद कुद्दूस ने बनाया। दूसरी बात, यह बैतुल्लाह की बुनियाद डाली गई और बैतुल्लाह की बुनियाद में जन्नत की सुर्ख याकूत की ईंट उतारी गई। फिर कायनात की जमीन बन गई। इंसानों के बसेरे से पहले और कायनात की जमीन के बसेरे की मखलूकात से बसेरे से पहले जिस चीज की जरूरत थी वो मस्जिद थी। मुस्लिम आबादी के तनासुब से मुसलमानों की इत्तेहादी ताकत को बरकरार करने के लिए जिस सोसाइटी में मुसलमान आबाद होने वाले हैं, जिस सोसाइटी के अंदर इनकी सुकूनत इख्तियार करने वाले हैं, वहां की बुनियादी जरूरत मस्जिद है। अगर उस सोसाइटी में मस्जिद है तो पूरी सोसाइटी आबाद हो जाती है और अगर उस सोसाइटी में मस्जिद नहीं होती है तो वो सोसाइटी जल्दी आबाद नहीं होती। कायनात की जमीन की सोसाइटी को खुदावंद कुद्दूस ने बनाया, लेकिन सबसे पहले अपने घर की बुनियाद डाली। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत, बेशक अल्लाह के इबादत के लिए रुई जमीन पर सबसे पहला जो घर बनाया गया वो मक्का मुकर्रमा में है। अल्लाह ताला ने कुरान में स्पष्ट कर दिया, बेशक अल्लाह के इबादत के लिए रुई जमीन पर सबसे पहला अल्लाह का जो घर बनाया गया वो मक्का मुकर्रमा में है। आयातुन बय्यिनातुन मकाम इब्राहीम, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं और अल्लाह ताला की कुदरत की मिन जुमला निशानियों में की एक निशानी मकाम इब्राहीम है, आज तक मौजूद है। वो पत्थर है जिस पर खड़े रहकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, जिसका बयान कुरान में है। वही यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हजरत इस्माईल पत्थर देते जाते थे और हजरत इब्राहीम पत्थर की चौंतर करते जाते थे और आज तक तारीख की किताबों में बिनाए इब्राहीम का नक्शा मौजूद है। जिस घर की छत नहीं थी और कद आदम के बराबर उसकी ऊंचाई बनाई गई थी और वो चौकर इमारत थी। ये तीन बातें मुसल्लम है। कद आदम के बराबर ऊंचाई थी और उसकी छत नहीं थी और वो चौकर इमारत थी। एक बाप बेटी की कुर्बानी के नतीजे में ये अल्लाह का बैतुल घर ताबीर किया गया। तकरीबन ये तीसरी तामीर थी जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की तामीर की। इसका मुफस्सल बयान पहले मैं कर चुका हूं। पहले अल्लाह के अम्र कुन से हुआ, फिर फरिश्तों के हाथ हुआ, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हुआ, फिर तौबा ने नूह में मुनहदिम होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको तामीर किया। उसके बाद की भी 3-4 तामीरात हैं।
यहां सिर्फ इतना अर्ज करना चाहते हैं कि रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहला घर जो बनाया गया बैतुल्लाह, वह मक्का मुकर्रमा में बनाया गया। दुनिया की इसके बाद की दूसरी मस्जिद वह मस्जिद अक्सा है जो बनाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया दोनों के दरमियान में कितना फासला है? फरमाया 40-50 साल का फासला है। जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी, जो शाम में बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी के नाम से मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है, ये दुनिया के दूसरे नंबर की मसाजिद के अंदर इसका शुमार किया जाता है। 3 मस्जिदें बड़ी बाबरकत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद। किसी भी मस्जिद में इबादत की गर्द से मुस्तकिलन सफर नहीं, लेकिन दुनिया की 3 मसाजिद के लिए सफर किया जा सकता है। एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मस्जिद अक्सा। मुसलमान समाज और माशरे में मस्जिद की हैसियत क्या होती है और मुसलमानों पर क्या हुकूक मस्जिद के हैं? देखिए, मस्जिद से दीन में 5 मर्तबा अल्लाह का मुनादी मुअज्जिन निदा देता है, जिसमें अल्लाह की तकबीर, शहादतैन का इकरार और नमाज की दावत, फिर अल्लाह की तकबीर और आखिर में कलमा शहादत पर बात खत्म होती है। एक दिन में 5 मर्तबा निदाए इब्राहिमी एक अजान के जरिए से इत्तला दी जाती है। गोया के दुनिया के मसाजिद अल्लाह की तौहीद के परचम को आम करने के लिए और पैगंबरों की रिसालत के परचम को फैलाने के लिए, इससे बड़ी दावत वहदत व तौहीद का और कोई दुनिया में मरकज नहीं हो सकता। गोया के मसाजिद अल्लाह ताला की दावत तौहीद का और दावत का सबसे अजीम सेंटर है, जहां से दिन में 5 मर्तबा अजान दे करके मुसलमानों को दावत नमाज दी जाती है। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मोहल्ले की जो मस्जिद है, इसमें 100% मोहल्ले के तमाम बालिग मर्द 5 वक्ता नमाजें बाजमात अदा करे। फजर से लेकर ईशा तक 5 फर्ज नमाजें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये 5 फर्ज नमाजें बाजमात अजान होते ही मस्जिद के अंदर अदा करने की कोशिश करे। उसके अलावा 4 नफल नमाज है, तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, अवाबीन है, वो घरों में पढ़ी जा सकती है। सुनने बादिया जो फर्ज के बाद रखी गई है, वो भी घरों में अदा की जा सकती है। अलबत्ता फराइज की अदायगी के लिए मस्जिद और मस्जिद की जमात का एहतमाम करना चाहिए। अगर मुसलमान महल्ले में बालिग अफराद है और मस्जिद का जो हिस्सा सजदे से खाली रहता है, इबादत से खाली रहता है, तो वो हिस्सा बारगाह खुदाबंदी में अगर 5 टाइम खाली रहा तो 5 मर्तबा बद्दुआ करता है, ए बारी ताला, जिस तरह नमाज न पढ़कर इस मुसलमान मोहल्ले ने हमें वैरान किया, तू भी इनके घरों को वैरान और बर्बाद कर दे। अगर एक दिन में 5 मर्तबा बालिग मर्द बिना किसी उज्र शरई के नमाज छोड़ता है, तो इस मस्जिद से दिन में 5 मर्तबा बद्दुआ निकलती है। जहां जहां दुनिया में उथल फाथल हो रहा है, मुल्क हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप के अंदर, ट्विटर में बहुत कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन बुनियादी बातें जिस पर नफ्स और शैतान दूसरी तरफ हमें रहनुमाई कर रहा है, उसके बजाय असल जो चीज है, जो इल्लत सहीहा है और जिसकी तलाफी करने से नुकसान की भरपाई हो सकती है, वह मस्जिद की बद्दुआ से भी बचना जरूरी है। अगर मुस्लिम समाज और मुसलमान महाशरा मोहल्ले के तमाम बालिग मर्द दिन में 5 मर्तबा अपने मोहल्ले की मस्जिद के अंदर जमा हो जाते हैं
اور محلے کی مسجد میں 5 ٹائم کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو یہ مسجد دعا دیتی ہے، اے اللہ جس طرح نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، دعا سے، استغفار سے مجھے آباد کیا، تو بھی ان مسلمانوں کے محلات کو آباد فرما۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ جمعہ کے دن جہاں پہنچے تھے وہاں بنیاد ڈالی مسجد جمعہ کی، پھر جب آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے اور مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، 2 بچوں کی زمین جو بلا عوض دے رہے تھے آپ نے عوض دے کر اس کو قبول کیا، اور مدینہ المنورہ کے اندر تقریباً یہ 3ری مسجد تھی، اس سے پہلے 2 مسجدوں کی بنیاد ڈال دی گئی تھی۔ جب مسجد نبوی تیار ہوئی، شروع میں کچی تھی، اس کا چھت بھی کھجور کے درخت کے پتوں سے ساجا گیا تھا، اور پلر جو بنائے گئے تھے وہ بھی کھجور کے درخت سے کھڑے کر دیے گئے تھے، جیسے ہمارے یہاں ناریلی ہوتی ہے اس کے مشابہ یہ درخت ہے، جیسے اس کی تمام چیزیں کام آتی ہیں اس کی تمام چیزیں کام آتی ہیں۔ اسی میں حنانہ کا قصہ بھی پیش آیا تھا، استوانہ حنانہ، وہ کھجور کا درخت تھا جس پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہاتھ رکھ کر کے نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہی حنانہ، اس کا استوانہ حنانہ کہتے ہیں، جو مسجد کے داخل میں تھا، اور آج تک اس نام سے اگرچہ وہ کھجور کا درخت نہیں لیکن ایک پلور کھڑا ہے اور اس کو استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے۔ پہلے کچی مسجد تھی، چھوٹی تھی، کھجور کے درخت سے پاک دی گئی تھی، پھر اس کی تعمیر ہوتی رہی جس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ آقا نے مدینہ المنورہ میں تشریف لے جا کر مسجد نبوی سے اپنے کام کی بنیاد ڈالی۔ یہی مسجد نبوی معرکوں کے لیے مسودہ گاہ بھی تھی، یہی مسجد نبوی تبلیغ اسلام کے خطوط کے اجرا کے لیے سینٹر بھی تھا، یہی مسجد نبوی کے دامن میں صفہ ہے جہاں پر اسلام کا عظیم ترین مدینہ کی سرزمین پر پہلا مدرسہ تھا۔ مکہ میں تو ہو چکے تھے، دار ارقم تھا، صفہ تھا جس پر دار ارقم تھا، صفا کی پہاڑی تھی۔ یہ دنیا کے مساجد مدارس کی ترتیب میں اس کی ایک تفصیلی رپورٹ ہے، اور دنیا کے مدارس میں سب سے پہلا مدرسہ اسلام کی تاریخ میں آقا کی امت میں، آقا کے زمانہ دعوت و رسالت کے بعد مکہ مکرمہ میں دار ارقم تھا، پھر وہ صفا جہاں سے صحیح کی ابتدا ہوتی ہے اس کی پہاڑی تھی، اور آج تک صفا کی پہاڑی میں خداوند قدوس نے وہ جاذبیت رکھی ہے، وہ صلاحیت موجود ہے کہ علم کا کوئی بھی گنجلک اور مشکل مسئلہ جس کا حل نہ ہو اور صفا پر بیٹھ کر کے اس کا اسٹڈی کیا جائے تو وہ حل ہو جاتا ہے۔ اس جگہ میں آج تک خداوند قدوس نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام یہاں بیٹھ کر کے دیر تک پڑھا کرتے تھے، جب اس کا چاروں طرف سے بند نہیں کیا تھا شیشے سے اور کھلا تھا، لوگ اس پر چڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، اور باضابطہ آدھا آدھا دن 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے اپنے اپنے مشکل علمی مسائل کے حل کے لیے یہاں بیٹھ کر کے تدبر اور تفکر کر کے اس مسئلے کا حل اس مقدس مقام کی برکت سے نکال لیا کرتے تھے، جب میں اس کے چاروں طرف شیشہ لگا ہوا نہیں تھا۔ تو دنیا کا مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آقا نے اسی مسجد نبوی میں ایک طرف صفہ یعنی اوٹلا یعنی چبوترا جو کسی زمانے میں مٹی کا تھا، بعد میں چل کر کے اس کو ایک دم تیار کر دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ مدینہ تشریف لے جائیں تو صفہ کا جو حصہ ہے چھوٹا سا جس پر کمرہ نہیں ہے، اوٹلا نما ہی ہے، آج بھی اوٹا ہی ہے، وہ اس کو کمرہ نہیں بنایا گیا، اور وہ اوٹا سب سے ختم نہیں کیا گیا، صفوں کی ترتیب میں ہے،
और नमाज जैसे नीचे होती है ओटले पर भी होती है, उसको खत्म नहीं किया गया। ये दुनिया की मुतबर्रक तरीन जगह है जहां पर इस उम्मत के अव्वलीन तलबा, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा और जानशीन इस्लाम हजरत सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन यहां बैठ करके अल्लाह के पैगंबर से इल्म हासिल करते थे। गोया के मस्जिद नबवी का ये हिस्सा इस्लाम का मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहले नंबर का मदरसा था। यहां कौन थे? हजरत अबू हुरैरा, मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ लाने वाले हजरत मुहाजिरीन सहाबा की ये कयामगाह थी। जो मुहाजिरीन सहाबा थे उनकी ये कयामगाह थी। यहां पर बैठकर आका की सोहबत में रहकर इल्म हासिल करते थे, जिनमें जलीलुल कद्र नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और वो टाइम था जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। अंसारे मदीना के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। अल्लाह के नबी ऐलान करते थे, जिसके साथ 2 का खाना हो, तीसरा इनमें से किसी एक को ले जावे। जिसके घर में 3 का खाना हो, चौथा इनमें से किसी एक को ले जावे। ये निजाम चलता था। और जब किसी के पास बंदोबस्त नहीं होता था, हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के पैगंबर से चिपकते रहते थे, आपसे दूर होना पसंद नहीं करते थे, भूख बर्दाश्त करते थे और भूख से गशी से बेहोश होकर के गिर जाते थे। और उस जमाने में इलाज ये होता था, यहां गर्दन पर पैर रखकर हिलाया जाता था, तब हुरैरा को होश आता था। इस उम्मत का मुक्सिरीन फिल अहादीस नबविया में पहले नंबर का रावी है। 5674 रिवायतें उम्मत तक अबू हुरैरा के रास्ते से आई है। 5674 हदीसें, 5674 रिवायतें। एक सहाबी रावी है अबू हुरैरा, बहुत हासिल किए, भूख की वजह से गशी का करके गिर जाते थे। ये दुनिया का मदीना पाक की सरजमीन पर पहले नंबर का मदरसा था जो मस्जिद के साथ दाखिल है। आज के हमारे जमाने में अजजी मौलाना इनामुल हसन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की रहलत के बाद पहले अजजी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, फिर हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब, इनके बाद शूरा हो गई। तीनों अल्लाह को प्यारे हो गए। काम के बानी मबानी, उसूल और ज़ाब्ते कुरान से रिसर्च करके पूरी दुनिया में कामयाब हुआ। फिर एक मस्जिदवार जमात बनाई गई, इसका नाम मस्जिदवार जमात। अब कोई हजरत जी नहीं, ये तीनों की तरतीब पूरी हो गई तो एक शूरा बन गई और हर मस्जिद के अंदर एक जमात बनी और मस्जिदवार जमात कहा जाता है। मस्जिद के मोहल्ले के बालिग तमाम नमाजियों को मस्जिदवार जमात के साथी कहा जाता है। ये 2-5 आदमी के ऊपर ये जमात डिपेंड नहीं रखती। जो मस्जिद है उसके मोहल्ले के जितने भी बालिग मर्द हैं वो सब मस्जिदवार जमात के साथी हैं। आखिर क्या वजह थी कि हमारे इन अकाबिर और असलाफ ने जो इस्लाह के काम के बानी मबानी थे, जब वो दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी फैज और सोहबत याफ्ता तबकीर ने फिर इस काम को जिनके कंधों पर डाला वो मस्जिदवार जमात। इसमें लफ्ज आता है मस्जिदवार जमात, यानी हर मोहल्ले की मस्जिद में, हर शरई मस्जिद के अंदर उस मोहल्ले के तमाम बालिग मर्दों की एक जमात होगी जो सुबह कयामत तक इन मसाजिद के निजाम को बाकी रखेगी और इन मसाजिद के निजाम को बरकरार करेगी। गोया के मोहल्ले के बालिग तमाम मर्द इस मोहल्ले की मस्जिद के जिम्मेदार हजरात करार दे दिए गए। मैंने उसूल से लेकर के आज तक मसाजिद मुसलमान इंसानों के जहन में और मुसलमान के कल्ब जिगर में
एक हार्ड की हैसियत रखता है, और 7 आसमान तक और 7 जमीन तक यह मस्जिद ही शुमार होती है, उसके अलावा कोई नहीं। हमें अल्लाह ताला ने इस्लामी समाज दिए, इस्लामी मुआशरा दिए, और 100 के आसपास मसाजिद अता फरमाई। वक्त के मौजूदा हालात हमसे ये तकादा करते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इन मसाजिद को 100% आमाले नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबाद करो। मुसलमान मुआशरा और समाज का हर अमल ये मस्जिद से ताल्लुक रखता है। यही से दावत इस्लाम के खुतूत लिखे गए, यही से मोहल्ले के बीमारों की इयादत की जमातें बनी, यही से इंतकाल पर ताज़ियत की मजालिस और उनके घरों की मुलाकातों का निजाम बना, यही से उम्मत के मफलूकुल हाल इंसानियत की हवाइज और उसकी जरूरियात का निजाम हुआ, यही से एलाए कलीमतुल्लाह के लिए आदाए इस्लाम वल मुस्लिमीन के खिलाफ मालिकों के ऐलानात भी किए गए। ये वो अजीब मराकिज हैं जिनको मराकिज़ दीनिया कहा जाता है, जिसका बका इस्लाम का बका, जिनका तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़। लिहाजा सबक की बात यह है, मैंने मुस्तनद बात कुरान और सुन्नत के हवाले से आपकी खिदमत के अंदर पेश कर दी। इसका नतीजा ये है कि मौजूदा हालात जो मुल्क में बिगड़ रहे हैं और इंतखाब तक क्या क्या हालात पैदा होने वाले हैं, वो दिन भी दूर नहीं। घर घर झगड़े का शिकार हो जाए, घर घर पार्टी में तकसीम हो जाए, घर घर, बल्कि एक घर की फैमिली में 2 पार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इतना बुरा वक्त आने वाला है कि जिसमें कोई घर सेफ नहीं रहेगा, घर में भी पार्टीशन हो जाएगा। एक शौहर किसी पार्टी का है, बीवी किसी पार्टी की है, औलाद किसी पार्टी की है। इन बदतरीन हालात में उम्मत इस्लामिया का सबसे बड़ा अलमिया पार्टीशन अगर है तो मुसलमानों में। मुसलमान के अलावा दुनिया की तमाम कौमें वो एक प्लेटफार्म पर जमा है, एक ऐलान पर हम ही में से बाकी खरीद लेते हैं और हमें में से बगास की खरीदारी करके हथियार हम ही पर हमारा इस्तेमाल होता है। इसकी कोई कमी नहीं है और उसके शवाहिदात आपके इल्म में है। लिहाजा जरूरत है इस बात की, हम मसाजिद को रमजान से भी ज्यादा हालात के तकाजे के ऊपर अल्लाह के घर की अजमत को दिल में रखते हुए 100% आबादी शुरू कर दे। ईरान तुरान वाही तबाही और मोबाइल पर पोस्ट डालने से के बजाय तकाजा इस बात का है, बहुत कुछ लोग एडवांस आरा के जरिए से माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। वक्त का अहम तरीन तकादा है अमन आस्ती और कानून को थामे रखना है। जहां तक मुमकिन है अमन आस्ती और कानून के दायरे में रहकर अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत, अपना ईमान, अपनी फैमिली, अपना कारोबार, अपना कामकाज, इसके साथ साथ अपने ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इन सब के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र कानून और अमन आस्ती के दायरे में रहकर के हो सकती है। कुछ लोग ख्यालात और अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं। ख्यालात और अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कलम चलाना या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अपनी अपनी पोस्टें डाल देना, ये माहौल को खराब करने के बजाय माहौल को खराब करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। जरूरत है इस बात की, जो बुनियादी पॉइंट है जिस पर मैंने बात का आगाज किया, मस्जिद की आबादी पर मुसलमानों की आबादी है और मस्जिद की बर्बादी पर मुसलमानों की बर्बादी है। ये तयशुदा है। ये बर्बाद हालात जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और एक कौम टारगेट में हमारा रिश्ता और ताल्लुक इन मसाजिद के साथ गहरा करने का
और इसको अपनी रीढ़ की हड्डी बनाने का और अपने जिस्म का हाथ बनाने का मौजूदा तकादे हमको दावत देते हैं। मौजूदा हालात हमें इस बात पर आमादा करते हैं, लिहाजा आज से इस बात की कसम खानी पड़ेगी और अपने नफ्स को आमादा करना पड़ेगा। जहां जहां जो हमारी मस्जिद है, मुसलमान की शराब तो इसी से है, मैं फुलान मस्जिद का मुसल्ली हूं, मेरी मुलाकात फुलान मस्जिद के अंदर होगी। बस इस्लाम और मुसलमानों का ताल्लुक इसी से है। हजरत साहबाए किराम की आदत शरीफा भी यही थी, अपना तारुफ अपनी मस्जिद के साथ कायम था। और मैंने दलाइल के साथ मुख्तसर अंदाज में मजमून को समझते हुए आपकी खिदमत में ये चंद बातें पेश की। लिहाजा वक्त का अहम तरीन तकाजा ये है, अपनी अपनी मसाजिद को 100% नमाज से, जिक्र से, तिलावत से आबाद करें, लोगों में उसकी दावतें चलाएं। और ये वक्त दुआ का है। मुश्किल दौर गुजर जाने वाला है, कोरोना का टाइम भी गुजर गया, ये हालात जो मुल्क में पैदा हो रहे हैं ये दौर भी गुजर जाने वाला है। हर उगता सूरज वो गुरूब हो जाता है। आप देखते हैं जितनी तपीस जोरों की होती है तो जोरों की तपीस में इंसान छतरी रख करके अपना बचाव करता है। लिहाजा अकलमंद को इशारा काफी है। कितना भी तेज तर्रार हालात हैं, लेकिन छांव की छतरी हर एक के लिए जरूरी है। और छांव की छतरी मिन जानिबिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, और वो अल्लाह के मसाजिद है और उसके आबादी हमारा बुनियादी और अव्वलीन फरीदा है। मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर एक प्लेटफार्म से एक सदा जब जाएगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज इसमें अमन और आस्ती बाकी रहेगी। हमारी ये मसाजिद भी 100% आबाद रहेगी। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दें। दूसरी खास बात, इन मसाजिद में कुरानी हल्के जो रमजान में होते हैं, गैर रमजान में भी हो, जो दर्स के सिलसिले मदरसों में है, एक आध वक्त मस्जिद के अंदर भी तय हो, यानी पूरी मस्जिद 5 फर्ज नमाजों के अलावा कोई न कोई दीनी मशगला इसमें होता रहे, इससे ये खाली न रहे। जितनी गैर आबाद मसाजिद होती हैं तो कुदरत की तरफ से भी ऐसे ही निजाम चलते हैं। ये चंद बातें मैंने मौजूदा हालात के तनाजुर में जो बुनियादी वीक पॉइंट है, जहां गलती है उसकी इस्लाह हो गई तो इंशाअल्लाहुल अजीज जो हालात का मालिक है, जिसके कब्जे कुदरत में कुलूब है, इन्नल कुलूब बैन इस्बाइर रहमान युकल्लिबुहा कैफा यशा, दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान में है, वो जैसे चाहे उलटफेर करता है। जो अल्लाह ये हालात पैदा करके मुसलमानों को अपने मसाजिद से वाबस्तगी के लिए अल्लाह ताला कड़वे कसेले हालात पैदा करता है, जब उसकी इस्लाह हो गई तो इंशाअल्लाहुल अजीज वो नफरत को मोहब्बत में बदलने वाली जात भी वही है, इख्तिलाफात को समाधान में बदलने वाली जात भी वही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं मसाजिद का एहतराम बरकरार रखते हुए मसाजिद की आबादी की अल्लाह ताला हमको जो है फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। देखो दुनिया में एक जगह मस्जिद वो है जिसको खुशबुओं की धूनी देने का हुक्म है। सहाबाए किराम में से किसी का लक़ब मुजबिर था। मुजबिर का मतलब यह है वो सहाबी मस्जिद नबवी के अंदर धूनी दिया करता था। धूनी धुआरे की नहीं होती है, खुशबुओं की धूनी होती है। आज भी हरामैन शरीफैन में बाज़ाब्ता हुकूमत आदमी मुंतखब करता है, उनको तनख्वाह दी जाती है और वो मस्जिद के अंदर 5 वक्त खुशबुओं की धूनी देते हैं। आपने देखा होगा जोहर की नमाज में हरम में इमाम का मुसल्ला बदल जाता है, अलग अलग मकामात पर मुसल्ले होते हैं, लेकिन आपने अगर नोट किया हो, हमने आंखों से देखा है, मताफ में मकाम इब्राहिम के पास जब मुसल्ला आता है तो पहले वो जगह धोई जाती है, फिर उसमें गुलाब का पानी से धोया जाता है, फिर इसमें आला किस्म की खुशबुएं छिड़की जाती है, फिर इमाम का मुसल्ला इनके मुहाफिज दस्ता लेकर आता है और फिर वो मुसल्ला खुशबुओं से सजाया जाता है और फिर वो मुसल्ला उठाने वाला उसका तनख्वाह सिर्फ मुसल्ला बिछाने की और मुसल्ला उठाने की।
اور وہ خوشبو کی دھونی دینے والے کی صرف تنخواہ ایک کام کی. اس میں 3 قسم کے تنخواہ دار ہیں. ایک صفائی کرنے والا، ایک مصلی بچھانے والا، ایک مصلی اٹھا کر کے لے جانے والا. یہ ہے مسجد کی حیثیت. اور اس طرح نظام کیا جاتا ہے. لہذا ان مساجد کو خوشبوؤں کی دھونی سے آراستہ پیراستہ کیا جائے، ان کی مکمل صفائی کا نظام کیا جائے. یہ دربار شہنشاہ خداوندی ہے، اور اس کو جتنا منزہ اور مبرہ کیا جائے گا اتنا ہی عالم اسلام خوشحال زندگی گزارے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی مسجد سے اپنے جسم کا ہارڈ سمجھ کر تعلق پیدا کرنے کی اور اس کو 100% اعمال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا اول الاولين ويا خير الاخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا انتہائی کشمکش میں مبتلا ہو چکی ہے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہر جگہ انسانیت کے خاتمے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ عالمی جنگ چھڑ جائے اور پوری کائنات تتر بتر ہو جائے. رشیا اور یوکرین کا موجودہ تنازع اے اللہ اسی مہینے کے ختم پر کہاں تک پہنچے گا تیری ہی قدرت بہتر جانتی ہے. ہر ایک نے پلان بنا لیا ہے ختم کر دینے کا. اے میرے پروردگار، زندگی کی مالک آپ کی ذات ہے. اے اللہ انسانیت کے قلوب بھیڑیوں سے خطرناک ہو چکے ہیں. تیری مساجد پر، تیرے مدارس پر، تیری قرآن پر، تیری دعوت پر، تیری نسبت کے ساتھ ہر اچھائی اور بھلائی کی کام پر اے اللہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اے اللہ ہمارا ہی جرم عظیم ہے، ہم نے تیری مسجدوں کو نماز سے ویران کیا، ہم نے قرآن کریم کو جزدان میں بند کر کے رکھ دیا. دور جانے کی ضرورت نہیں، رمضان کے بعد سے ابھی تک ہر انسان تیرے دربار میں اپنا جائزہ پیش کرے کتنا پڑا. اے میرے پروردگار ہم ہی نے تیرے قرآن کو ویران کیا. اے اللہ ہم ہی نے تیری مساجد کو غیر آباد کیا. دشمنوں کی للچائی نگاہیں ہماری مساجد پر پڑی. اے اللہ ان لالچی کتوں کی نگاہیں جب تیرے مقدس گھر پر گرتی ہے یقیناً کہیں نہیں قصور ہے تو وہ ہم مسلمانوں کا ہی ہے. اگر ہم ان کو 100% نماز سے آباد کرتے، ہم ان شعائر اللہ کی عظمت بجا لاتے، اللہ غیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی نگاہ اس پاکیزہ چیز پر بگاڑے. یہ قانون ہے، جو عورت اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہے تو دشمن کبھی اس پر للچائی نگاہ نہیں ڈال سکتا ہے. لیکن جون سے عورت اپنی حیا اور عفت کو داغدار کرے اور وہ بے پردہ بن جائے اور وہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائے تو پھر غیر محفوظ چیز پر ڈاکو ڈال دیتا ہے، چور چوری کر لیتا ہے. اللہ اس کی حیا اور عفت کو پار پار کر دیتا ہے. اللہ ہم نے بھی جو ان گھروں کی حفاظت کی تدابیر تھی ختم کر دی، جس کے نتیجے میں آج ہم پریشان ہیں. پورا ہندوستان انتہائی کشمکش میں مبتلا ہے، حالات سے دوچار ہے. اللہ کہیں سکون کی جگہ نہیں ہے، تیرے ہی گھر ہمارے لیے سکون کی جگہ ہیں. اللہ ان گھروں پر غاصبانہ قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے پروردگار ان آنکھوں کے سامنے اگر وہ منظر سامنے آ جائے جن پر غاصبانہ قبضے کی باتیں ہو رہی ہے تو ہمارا وجود تیری دھرتی پر کس کام کا رہ جائے گا. یعنی ہمارا باقی رہنا تیری دھرتی پر کس کام کا رہ جائے گا. پھر ہماری ضرورت کیا رہ جاتی ہے تیری دھرتی کے اوپر. اے ہمارے پروردگار ان آنکھوں کے سامنے وہ برے دن نہیں دیکھنے چاہیے تھے، لیکن اے اللہ زوال کے بربادی کے اسباب غمگین پیدا کیے ہیں. آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے تھوڑی بہت توجہ پر بہت عطا کرنے والا رب تو توبہ قبول فرما لے.
तेरे घरों की तू खुद हिफाजत फरमा ले, अब से तो नहीं हो सकता है। अब कितना ही बोले, कितना ही प्लानिंग बनाए, कितने ही तदबीरें करे, लेकिन अल्लाह लोगों की समझ में नहीं आता है। परवरदिगार उसका दफा आंखों के सामने नहीं है, लेकिन जब ये घर हाथ से रुखसत हो जाता है, खून के आंसू रोने से भी कोई फायदा नहीं होता है। हमारा जुर्म अदीब वहां फरमा दे, इन घरों की हिफाजत जैसे तूने अबाबिल से बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई थी, तो तमाम ताकतों के साथ वो अल्लाह आज मौजूद है। अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया था, जिसका घर है वही हिफाजत करेगा। हम अपने माल के मुकल्लफ हैं, इसकी हिफाजत खुद करो, लेकिन वो अब्दुल मुत्तलिब था। अगरचे हालत शिर्क में भरा, लेकिन ये मेरे रब, जिस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी तेरे हवाले की, अबाबिल, तूने अबाबिल को भेजकर हिफाजत की थी। हम तेरा कलमा पढ़ने वाले, तेरी नमाज पढ़ने वाले, तेरे दरबार में आंसू बहाने, हम ये जुमला नहीं बोल सकते कि मेरा रब, हम इस काबिल नहीं है जो अब्दुल मुत्तलिब का जुमला था। हमने कोई काम ही कहा किया है, अल्लाह आबादी का हमने कोई काम ही कहा किया है। उसके दिल से जो जुमला निकला था, अल्लाह जिसके नतीजे में तूने अबाबिल की फौज भेज कर आज तक बैतुल्लाह को तूने महफूज रखा। तेरी करीबी का वास्ता, अब्दुल मुत्तलिब के उस जुमले का वसीला, उस अबाबिल फौज का तुझे वसीला, हमारी मस्जिद को तू महफूज फरमा ले, हमारी मसाजिद को आप महफूज फरमा ले। आपके अलावा कोई हिफाजत करने वाला नहीं। ऐ अल्लाह, इन वास्तों की तू लाज रख ले। किसी का घर मासूम कबूल हो न हो, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, हमारा वजूद और हमारा बका तेरी मसाजिद के बका पर है। ऐ अल्लाह, हम सबको इसकी आबादी की तौफीक अता फरमा। और हम राहिमीन, जो चली गई वापस अता फरमा दे। जिनके बाबत मजमूम इरादे हैं, अल्लाह उनको चिकनाचूर फरमा दे, खत्म फरमा दे। और हम राहिमीन, इन तमाम किबलों की हिफाजत के लिए हमारा जान, माल, इज्जत, आबरू अल्लाह कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क में अमन आशी नसीब फरमा, बीमारों को सेहत शिफा अता फरमा, परेशान हाल भाइयों की परेशानी दूर फरमा, मकरूदीन के कर्ज के अदायगी भी शक्ल पैदा फरमा, औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। इस मुल्क में अमन आशी को बहाल फरमा, कानून की पासदारी की अल्लाह रआया को और हुकूमत को अल्लाह तौफीक अता फरमा। अल्लाह रहमुर राहिमीन, हमारा जान, माल, इज्जत, आबरू आपके हवाले हैं, आप ही की जात हिफाजत करने वाली है। अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, अल्लाह किताबों की, सहीफों की, मजहबी शाआइर की, अल्लाह हर फर्द उम्मत की, अल्लाह मकाबिर की, दरगाहों की और तमाम मुस्लिम इस्लामी शाआइर की अपनी ही गैबी मदद से, अपनी गैबी फौज से के जरिए से, ऐ रब्बुल आलमीन, जैसे अल्लाह के नबी के रोजे की आप हिफाजत फरमा रहे हैं, आपकी कब्र अतहर की हिफाजत आप फरमा रहे हैं, और आपका एक मानवी लश्कर मदीने में जमीन के अंदर है जो रसूलुल्लाह की हिफाजत में आपने तैनात किया है। ऐ अल्लाह, मुल्क हिंदुस्तान में रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज रखकर, आपके कल्ब अतहर की लाज रखकर, जिसकी हिफाजत आप खुद कर रहे हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए भी आप ही की जात तदबीर फरमा दे। आपसे बढ़कर कोई हिफाजत करने वाला नहीं। अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमा, तौफीक अता फरमा, बेकसूर जेलों की सलाखों के महबूसों को रहाई नसीब फरमा। अल्लाह रहमुर रहमीन, हर जुल्म तशद्दुद का शिकार बनने से, तासुब और जौर का शिकार बनने से एक एक फर्द उम्मत की भरपूर हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लम ने जो खैर मांगी हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन जिन शुरूर से पढ़ना चाहिए हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबिही व बारिक व सल्लिम ब रहमतिक या